once again. Now be ready with your notebook. Okay, and today I'll continue the previous class. So you're welcome to Sandeep sir's class. Let's do study contency with the Sandeep sir. Okay. Now this is for the reminder your school premises. Okay. Well, now let's do start. So this top chapter name is, as you know, admission of a new partner. And today we have to study capital account. In previous class also we had studied about the capital account, and today I'll continue the same class so that you can understand in a very good manner. Okay students, so now uh, first of all I want to recap some fingers tip. The steps of preparing partners capital account. While in the question it will be mentioned that this you are supposed to prepare the partner's capital account. So I have found that often students get confused how they start and how when they will finish, how they come to know all the information they have supplied in the capital account. So they always remain confused if they are not doing practice well. So to remove that, to overcome on that confusion, just I am showing you some fingers tip. You can take the screenshot. Okay, students. So let's start. First of all, while we do prepare the partner's capital account, so we should write the opening balance of capital very first. Opening balance of capital should be written. If it is given in liability side, you should write in the credit side of capital account as buy balance BD. If capital is given in asset side, so you will write in debit side to balance BD. Okay. Generally, uh, you will find the capital would be given in the liability side because it always having the credit balance, right? So we should write in the credit side. Second step, we should record the accumulated profit, reserve, loss, old goodwill and fictitious assets in the old ratio between old partners only. So you know that the accumulated profit and reserve, it remains in the liability side. So it will be credited to the capital account in the old ratio between old partners, and loss, old goodwill and fictitious assets remains in the asset side, so it should be debited into the capital account. Okay, in the old ratio between old partners. In now I think you all are getting this. So many times you had studied this topic. Next, after recording the second step, third, record of profit or loss on revaluation account. Okay, so we do prepare the revaluation account and we find the profit or loss on the revaluation. After finding the profit or loss, we should distribute between the old partners in their old ratio. If there is profit on revaluation account, so you should write in the credit side by revaluation account and should be shared in the capital account in old ratio. If there is loss on revaluation, so you should write in the debit side of the partner's capital account uh, to revaluation account as. Okay. Next, this is the fourth step. Sorry, fourth step is saying record of assets taken over by any old partner. So देखो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ स्टेप है, बड़ा रेयरली आता है, इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था. ठीक है कि अगर इन द बिटवीन while you are maintaining the partners capital account and the information you get कि particular asset taken over by a particular partner. ठीक है, सपोज दैट कि A and B are old partner and C is the new partner. और जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उस समय लिखा है कि ए ने फर्नीचर को 20,000 रुपीज पे ले लिया. ठीक है, ए ने 20,000 का फर्नीचर टेकन ओवर कर लिया, ले लिया. तो अब क्या करेंगे, यहाँ एसेट्स को एक पार्टनर लेता है, तो जितने रुपए का एसेट्स लेता है उतने रुपए से उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. कैसे, उसकी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अगर फर्नीचर लिया है, अगर फर्नीचर लिया है तो लिखेंगे टू फर्नीचर और उसके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट दिखा देंगे. ठीक है, तो कभी भी जनरलिटी अगर पास करना हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, record a premium for goodwill and brought premium sorry हाँ, record a premium for goodwill and capital brought by new partner. सो देखो स्टूडेंट्स, जब नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है तो उसका रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर,
अगर कैश या काइंड्स में लाता है, अगर कैश या काइंड्स कुछ भी नहीं लाता है गुडविल के लिए, ही डज नॉट ब्रिंग, सो लिखेंगे बाई, अगर सी नया पार्टनर है मान लो, तो बाई सीज करेंट अकाउंट मीन्स न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसको लिखेंगे बाई कैश या बैंक करके उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, राइट। सो ये तो हुआ 5 स्टेप्स, यू कैन लर्न द स्टेप्स। अगर मान पहला स्टेप तो कंपलसरी दिया रहेगा, सेकंड स्टेप अगर नहीं है तो स्किप करोगे, थर्ड स्टेप पे आओगे, थर्ड स्टेप नहीं है तो स्किप करोगे, फोर्थ पे आओगे, फोर्थ नहीं है तो स्किप करोगे, फिफ्थ पे आओगे, और लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। सो देखो जनरली 5 स्टेप्स है, जो स्टेप बीच से गायब उसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले आना है, ठीक है। अदरवाइज सब दिया है तो सारा सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, लर्न ऑन फिंगर्स टिप द स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्रीज इन द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट कभी कभी जर्नल एंट्री पूछता है फुल फ्लेज, तो उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें, जैसा कि कैपिटल में बताया। सो इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो लेजर में जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे रिकॉर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉस ओल्ड गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, यू ऑल आर नोइंग। सेकेंड, रिकॉर्ड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड, रिकॉर्ड ऑफ एसेट टेकन ओवर बाई पार्टनर, जर्नल एंट्री मैंने करके दिखा दिया इसी में। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट एसेट्स अकाउंट, ठीक है। सो ये मैंने लिखा हुआ है, सो यू कैन सी नाउ। रिकॉर्ड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अब नया पार्टनर गुडविल जितना लाता है उसका रिकॉर्ड करते हैं, एंड कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। सो दीज आर द 5 स्टेप स्टूडेंट्स, you should learn accordingly. Take the essence of this slide. Now I am coming to the question today, but before starting the question, just I need to share some format how to prepare the capital account. And last class I have taught you all people ki how to prepare the capital account, what will be the format, everything. So here you will see this is the balance sheet, okay. Sometimes you will find the full-fledged question, the balance sheet would be given along with the additional information. बैलेंस शीट दिया होगा उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है। अब हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बैलेंस शीट को यूज़ करके हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। सो देखो कैपिटल अकाउंट के लिए हमने यहाँ पर मान लो फॉर्मेट बना दिया है, पार्टनर ए बी आर द ओल्ड पार्टनर, सी इज द न्यू पार्टनर, ओके। सो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है, ऊपर हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो कि बैलेंस शीट से कौन सा आइटम कैपिटल में किधर जाएगा और कौन सा एसेट्स में से किधर जाएगा, तो आपको पता है बैलेंस शीट में जैसे रिजर्व, WCR, प्रॉफिट लॉस हो गया, इधर इधर ओल्ड गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आपको पता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जैसे कैपिटल का देखो ए और बी लिखा है, तो अगर लायबिलिटी में है या एसेट्स में है तो जिधर भी होगा किधर ले जाएंगे वो देखो आप। तो देखो मैं यहाँ एक एरो बना रहा हूँ, उससे आप समझोगे। यस, सो नाउ इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी दी होल स्क्रीन। तो एसेट साइड वाला आइटम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, वो देखो कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स के डेबिट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, और जो लायबिलिटी वाला आइटम है वो क्रेडिट। तो अगर आप भूल भी गए कि किधर लिखना है तो आपको दिमाग में रख लो बैलेंस शीट में कौन सा चीज़ किधर होता है, उसको किस साइड लिखना है, जस्ट रिवर्स लिखना है, इधर का इधर लिखना है और इधर का इस साइड, ठीक है। क्रॉस। सो नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। सो ओके स्टूडेंट्स, now in front of you a question you will see, okay. Now I am sharing again question. So question 1, Priyesh and Mrityunjay are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted to Utkarsh for 1/5 share in the future profit which he acquires equally from both. देखो बेटा यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया, क्योंकि 1/5 के लिए आ रहा है और कह रहा है विच एक्वायर्स, यानी जो उत्कर्ष है वो अपना शेयर 1/5 ए और बी सॉरी प्रियेश और मृत्युंजय से इक्वली ले रहा है, ठीक है। The balance sheet was as follows on 31st March 2019. So balance sheet given in front of you, you can see the balance sheet. So just I am reading the balance sheet, student, you can take the screenshot of this question. And after that, I'll be sharing the additional information. Again, you have to take the assess of that. Then you can solve. So here the information who was the old partner and who are the old partner and who was the new partner. And now the balance sheet. Balance sheet you will find in liability side creditors are given 35, EPF employment provident fund 60,000, outstanding expenses 9,200,
Capital appreciation Mrityunjay 150 and 120,000. General reserve 20,000. WCR workman compensation reserve 30,000. Investment fluctuation reserve 20,000. Right. Now in asset side, goodwill appears 20,000. Machinery 1,80,000. Furniture 40,000. Investment 80,000. Or data 20,000 less provision 800 is equal to 19,200. Now stock 50,000, advertisement suspense 10,000, debit balance of PL account 5,000, cash at bank 40,000, total 444,200. Okay. So student, take the screenshot of it. Now I am sharing the next slide for the information. After that I'll be solving here, and but you must have the screenshot. Okay, done. So I hope you all have taken the screenshot. Now I'm sharing the next slide. So student, next slide, you will see what I am sharing the additional information. The first information is saying that the following terms were agreed on the admission of Utkarsh. Okay. Now see क्या क्या terms था. First, goodwill is to be valued at ₹2 lakhs. तो स्टूडेंट पहला इंफॉर्मेशन है कि जब एडमिशन हो रहा है उत्कर्ष का तो उस डेट को फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख रुपीस किया गया. दिस इज द न्यू गुडविल. Second, further information is saying Utkarsh will bring ₹1,50,000 as his capital, यानी 1,50,000 रुपया कैपिटल के लिए लेकर आएगा उत्कर्ष, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, और जो आवश्यक अमाउंट गुडविल का होगा कैश. तो अब तुम बताओ कि गुडविल का अमाउंट कितना होना चाहिए. तो उत्कर्ष बेटा आ रहा है यहाँ पर 1/5 शेयर के लिए, और फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए दी है. तो इसी 2 लाख रुपए में 1/5 कर देंगे तो उत्कर्ष का नेसेसरी अमाउंट पता चल जाएगा, गुडविल का आ जाएगा 40,000. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी दिया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है market value of investment be valued at ₹75,000 and there is a claim against workman compensation reserve is 10,000. okay students, so अब ये देखना है तुम्हें कि इन्वेस्टमेंट कितने का, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप देख लोगे, और WCR 10,000 का. तो मैं आपको पिछले स्लाइड पे देखो दिखाता हूँ. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया 80,000 का, आपके सामने स्क्रीन पे होगा. 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि अब इसकी वैल्यू 75 हो गई, और WCR पहले 30,000 का था और क्लेम 10,000 का. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे. तो यहाँ तक हो गया. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड आउट ऑफ 75,000 एंड क्लेम फॉर WCR इज 10,000. नेक्स्ट, sorry, machinery is to be increased to ₹2 lakhs and furniture was undervalued by 20%. ठीक है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो दिस इज अ प्रॉफिट, एंड फर्नीचर भी अंडर वैल्यूड है तो ये भी प्रॉफिट होगा. बट यहाँ देखो थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है ये, हाई ऑर्डर थिंकिंग है. यहाँ पर अगर अंडर वैल्यूड बाई रुपीज़ दिया होता एब्सोल्यूट अमाउंट तब तो आसान हो जाता, बट यहाँ परसेंटेज दे दिया है. ठीक है, तो आपको पता है पहली बात की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर फर्नीचर या एसेट्स को अंडर वैल्यूड दिखाया गया है तो ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब बढ़ेगा. ये जितने रुपए से अंडर वैल्यूड होता है उतने रुपए से अब नेक्स्ट बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में बढ़ा के दिखाते हैं, क्योंकि पहले से अंडर वैल्यूड था. तो एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट होगा. ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स पे 5% निकालना है. लेट वी चेक कि कितना पहले से था और अब कितना होगा. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ लायबिलिटी ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम्ड. क्रेडिटर्स में 5,000 रुपए का ऐसा लायबिलिटी है जो कि अब मांगा नहीं जाएगा हमसे. ठीक है. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज टू बी इंक्रीज टू ₹10,000. जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, वो पहले जो भी था अब उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज द लायबिलिटी एंड इंक्रीजिंग दिस मींस लॉस. ओके, सो नाउ देयर वाज अ प्रीपेड सैलरी. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन बाहर एडिशनल में कह रहा है कि देयर वाज प्रीपेड सैलरी ₹2,000. इट वाज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड. अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. नाउ पास जर्नल एंट्री. देखो बेटा, आपको पूरा चीज़ सीखना है इस क्वेश्चन में. हम चाहे तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट या जर्नल एंट्री बता सकते थे, लेकिन दोनों चीज़ मैंने पुटअप किया है ताकि आप दोनों समझ सको कि कैसे करते हैं. अब स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग सोल्यूशन का. ठीक है. ओके, सो
Past journal entries, prepare evaluation account, partners capital and balance sheet on 1st April 2019. Okay students, so now I hope you all have taken the SS screenshot. If you have not taken, just take the screenshot of this, because I am going for the solution, and just I am repeating ki when the I will complete the first one slide, then you will take the screenshot immediately so that you can revise it. So now I am moving for the solution. Okay students, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट जर्नल एंट्री, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री, तो आप लोगों ने अभी फिंगर्स टिप पे लिखा है जर्नल एंट्री में सबसे पहला रिकॉर्ड हम करेंगे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फिक्सेशियस एसेट्स, इन सारी चीज़ों का बताया ना, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पहले। तो देखो क्वेश्चन में WCR दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले 1 अप्रैल को चूंकि वो एडमिशन हो रहा है, सो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 30,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि देयर इज अ क्लेम अगेन वर्कमैन कंपनसेशन ₹10,000। सो 30,000 में से 10,000 रुपये आपने लिख दिया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितने बच गए आपके? 20,000। दिस 20,000 ऑफ WCR विल बी शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर इज प्रियेश एंड मृत्युंजय, ठीक है। सो प्रियेश और मृत्युंजय को कितना मिलेगा ओल्ड रेशियो? तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखो 3:2 दिया होगा स्टूडेंट्स। सो 20,000 रुपए को 3:2 में बांट दो, तो एक को मिलेगा 12,000 और एक को मिलेगा 8,000। कैलकुलेशन यू कैन डू ऑन योर नोटबुक, you are having the pen and notebook, okay? So 20,000 into 3/5 and 2/5, you will get 12,000 and 8,000, right students? So अब आते हैं, एक तो हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन में आप देखो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 75,000 हो गई मार्केट वैल्यू, और पहले से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? 80,000 थी, 80,000 रुपए की। तो 80,000 रुपए की जगह कितना हो गया? 75,000 रुपए, 75। तो 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो जितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है, उतने रुपए से इन्वेस्टमेंट को डाउन यानी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 5,000 से। तो कहाँ से 5,000 रुपये एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, क्योंकि इसका पर्पस ही यही होता है कि अगर मार्केट वैल्यू कम होती है इन्वेस्टमेंट का, तो इसी रिजर्व से मेंटेन किया जाएगा। तो 20,000 रुपये का बैलेंस शीट में दिया है रिजर्व IFR, और 5,000 रुपये का लॉस हो गया है। एडिशनल में बता रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम 75,000, तो 5,000 रुपये कम हो गया, तो टू इन्वेस्टमेंट। तो अब कितना बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 20,000 में से 5,000 यूटिलाइज कर लिए उस लॉस को पूरा करने के लिए, तो बचा कितना? 15,000 ना। 20 में से 5 घटा दो, 15,000। अब दिस 15,000 शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्रियेश एंड मृत्युंजय इन देयर ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो 3:2, तो 15,000 को कैलकुलेट करेंगे 3/5 एंड 2/5, तो यू विल गेट 9,000 एंड 6,000। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया। अब देखो जनरल रिजर्व भी दिया है, मैंने बताया ना पहला स्टेप हम लोग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व करना है, ठीक है। तो WCR था, IFR था, जनरल रिजर्व था, एक एक करके हम लोग सारा करेंगे। तो जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में 20,000 का, अब उसको प्रियेश और मृत्युंजय में बांट दो, इसके लिए कोई ऐसा क्लेम नहीं है। सो 3:2 में 12 शेयर करेंगे तो 12,000 एंड 8,000। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्लाइड का WCR, IFR और जनरल रिजर्व को कैसे रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। यू विल डू द रिविजन। सपोज दैट कि WCR का अगर कोई क्लेम नहीं दिया होता 10,000, तो पूरा का पूरा 30,000 बांट देते, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम नहीं हुई होती तो भी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरा का पूरा 20,000 बांट देते, जैसे कि जनरल रिजर्व पूरा पूरा बांटे। लेकिन इन दोनों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसमें बोल रहा है कि 10,000 का क्लेम है और इसमें 5,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए पहले एडजस्ट कर लिया, फिर बचा हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप लोग हम लोग एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में देखो कि दिया हुआ है ओल्ड गुडविल 20,000 रुपये का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है 10,000 का, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 का, ये सब एसेट्स में दिया है। तो इन तीनों को क्या करेंगे हम? राइट ऑफ एक एक करके अलग अलग करते हैं। जैसे प्रियेश कैपिटल डेबिट, मृत्युंजय कैपिटल डेबिट टू गुडविल करते हैं एक बार, फिर दूसरी एंट्री में करते हैं प्रियेश कैपिटल डेबिट, मृत्युंजय कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करते हैं, फिर तीसरी एंट्री में प्रियेश कैपिटल, मृत्युंजय कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीनों का सेम एंट्री हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं है कि क्लेम वगैरह कुछ है इसमें, तो हम तीनों को एक साथ कंबाइंड कर दिए।
प्रियेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मृत्युंजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीनों को जोड़ दो, 35,000 आ रहा है। 20 + 10 + 5, 35 को किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो नरेशन है राइट ऑफ फिक्सेशियस एसेट्स। आपको पता होगा एसेट्स वाले आइटम को राइट ऑफ करते हैं। लाइबिलिटी वाले आइटम को बांटने के लिए कैपिटल क्रेडिट किए थे, एसेट्स वाले आइटम को बांटने के लिए कैपिटल डेबिट करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग कि पहला स्टेप तो फिनिश हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फिक्सेशियस एसेट सबका हो गया। अब आते हैं रीवैल्यूएशन पे। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेटा आप लोग देखो, मैंने बताया है मैक्सिमम 3 एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन की। अगर से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का सारा एक जगह, लॉस हुआ है तो लॉस का सारा एक जगह, और फिर तीसरी एंट्री क्लोजिंग एंट्री होती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपका प्रॉफिट किन किन चीज़ों पर हुआ है। तो मशीनरी की वैल्यू आपकी क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है, 20,000 से। फर्नीचर की वैल्यू ओवर अंडर वैल्यूड है फर्नीचर, आप देखोगे फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड, ठीक है। सो फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाई 20% है। तो पता है आप लोगों को कि जब भी कभी अंडर वैल्यूएशन आप एसेट्स दिया हो तो वो प्रॉफिट होता है, राइट। सो प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। बट अमाउंट कितना है अभी छोड़ दो, 10,000 जो लिखा है छोड़ दो, अभी कैसे आएगा वो हम बात करेंगे। क्रेडिटर्स के बारे में सोचो। क्रेडिटर 5,000 रुपये का ऐसा है जो कि अब क्लेम नहीं किया जाएगा, तो ये भी हमारा बच गया। लायबिलिटी होता है क्रेडिटर और हमें 5,000 रुपये अब नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000। प्रीपेड सैलरी, देखो प्रीपेड सैलरी एसेट्स होता है, पहले से बैलेंस शीट में नहीं था, अब हमें दिखाना होगा, तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा, तो दिस इज अ प्रॉफिट। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000। सो देखो 20,000 ये तुम्हें पता है, क्वेश्चन से ही पता चल गया। 5,000 ये भी क्वेश्चन में ही है, 2,000 ये। लेकिन फर्नीचर का 10,000 कैसे आया ये समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%, मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू जो बैलेंस शीट में आज के डेट में दिखाई गई है 40,000 रुपया, देखो बैलेंस शीट में दिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं। 40,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में, और कह रहा है इट वाज अंडर वैल्यूड बाई 20%। इसका मतलब अगर 20% से कम वैल्यूड किया गया तो ये कितना होगा? 80% होगा। देख लो, अगर अपने आप में कोई भी फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू 100% थी और 20% से कम इसको दिखाया गया है तो कितना होगा? 80% होगा, ठीक है। तो जब ये 40,000 रुपये 80% है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 40,000 इंटू 100/80, यानी 80% का मतलब क्या हुआ? 80/100, तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 40,000 को 100/80 कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई 50,000, ठीक है। यानी फर्नीचर की एग्जैक्ट वैल्यू 50,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाया जो गया है वो 40,000। तो 50,000 में से 40,000 घटा दो तो कितना बचा? 10,000, यानी 10,000 रुपया कम दिखाया गया था। तो अब जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो 10,000 बढ़ाकर दिखाएंगे, यानी 50,000 दिखाएंगे। तो हमारा अब 10,000 से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। कितने लोग 40,000 पे ही 20% निकालने लगे होंगे? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,000। इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया हुआ है, वर्किंग नोट यू कैन सी। तो ये आ गया। अब टोटल आप चेक करो तो 20 + 10 30, 5 35, 2 37, 37,000 रुपये से रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट पर रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है। अब आगे आते हैं कि लॉस वाला, देखो नीचे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा इंक्रीज हो गया है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी तुम्हारा 5% मेंटेन करना है, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया, पहले से 800 रुपये था प्रोविजन और डेटर है 20,000 का, तो 20,000 का 5% अगर निकालोगे डाउटफुल डेब्ट तो 1,000 रुपया आएगा। तो है कितना पहले से? 800, और मेंटेन कितना करना है? 1,000। तो 200 रुपया प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा, तो लॉस होगा। तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200 रुपये से। बच्चों की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज टू 10,000 करना है, पहले से 9,200 रुपया था, अब उसको बढ़ा के 10,000 करना है, तो 800 रुपया और बढ़ रहा है आउटस्टैंडिंग, तो उसको भी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल लॉस कितना आ रहा है हमारा? 1,000। मतलब प्रॉफिट है 37,000 और 1,000 रुपये का लॉस है रिवोल्यूशन पे, तो दो एंट्री तो हो गई। अब हम लोग करेंगे क्लोजिंग एंट्री। तो आप देखो कि क्लोजिंग कैसे होगा। 37,000 क्रेडिट है, 1,000 रुपये डेबिट है, तो माइनस करने पे क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने पे कैपिटल क्रेडिट और रिवोल्यूशन डेबिट होता है क्लोजिंग पे, क्लोजिंग एंट्री के लिए। तो रिवोल्यूशन तुम्हारा 36,000 से क्रेडिट ज़्यादा है, तो रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया 36,000 से, ताकि क्लोज हो जाए, और यही 36,000 रुपया पार्टनर्स मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देंगे, टू प्रियेश कैपिटल टू मृत्युंजय कैपिटल इन 3:2, राइट।
तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका रिवोल्यूशन अकाउंट भी फिनिश, दूसरा स्टेप भी। अब मैंने लिखवाया है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का रिकॉर्ड करना। सो आप क्वेश्चन में देखो, नया पार्टनर जो उत्कर्ष है वो कैपिटल भी ला रहा है, तो हम कैपिटल और प्रीमियम दोनों साथ साथ कर देते हैं, ठीक है। सो उत्कर्ष ला रहा है 1,50,000 रुपये कैपिटल के लिए एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। तो नेसेसरी अमाउंट मैंने कैसे बताया कि फर्म की गुडविल 2 लाख रुपया दिया है और उत्कर्ष का जो शेयर है 1/5 है, तो आप खुद पेन से कर सकते हो, 2 लाख इंटू 1/5, सो यू विल गेट 40,000। यानी कि उत्कर्ष का जो शेयर होगा गुडविल में वो 40,000 रुपीज होगा, ठीक है। तो 40,000, तो उत्कर्ष कुल कितना पैसा लेकर आएगा, 1,50,000, तो कैपिटल के लिए ला ही रहा है, 40,000 रुपया गुडविल के लिए लाएगा, यानी टोटल 1,90,000 ही विल ब्रिंग। सो वी विल राइट द बैंक अकाउंट डेबिट टू उत्कर्ष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने बैंक जो यूज किया है क्योंकि आप देखो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में बैंक लिखा है, तो इसलिए हमने कॉमनली यूज कर लिया सो दैट कि हमें अलग से कैश अकाउंट ना बनाना पड़े, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस प्रीमियम को जो भी लेकर आया, एज यू नो कि तुरंत हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रियेश कैपिटल टू मृत्युंजय कैपिटल, ठीक है। और किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, जो कि 1:1 है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उत्कर्ष इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच he acquires इक्वली फ्रॉम प्रियेश एंड मृत्युंजय। सो इक्वली 40,000 को 20,000 रुपया बांट दिया। तो ये भी हो गया, कैपिटल का भी रिकॉर्ड हो गया। स्टूडेंट, आई होप कि ऑल द जनरल एंट्री हैज बीन फिनिश्ड, सो यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम लोग आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पे। तो जनरल एंट्री जब सब हो गया तो आगे का बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ओके, डन, जस्ट आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप चाहो तो नोटबुक पे फटाफट बना भी सकते हो, जल्दी से बन सकता है। ड्रॉ द फॉर्मेट, T-SAP account, debit particular amount, okay. So revolution account, so you will see here. So student, हमें प्रॉफिट किस पे हुआ है, मशीनरी की वैल्यू 20,000 से इंक्रीज हो गई, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाई 20%, मीन्स 10,000 प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अब क्लेम नहीं किया जाएगा। प्रीपेड सैलरी जो कि रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दीज आर द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या होता है, प्रॉफिट, राइट हैंड साइड। लॉस डेबिट साइड में लिखते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200 रुपये से हमारा बढ़ गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 800 रुपये से इंक्रीज हो गया, तो दोनों लॉस हो रहा है, तो इधर लिख दिया। अब टोटल करेंगे तो बाई ऑब्जर्वेशन यू कैन चेक कि क्रेडिट साइड टोटल इज 37,000 विच इज मोर देन डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में ब्लैक से लिखा हुआ है 200 और 800, 1,000 ही आ रहा है, तो 37,000 ज़्यादा है, तो यही दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी लिख दिया। इस 37 में से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया 200 और 800 को 1,000 मिलाकर, तो 36 बचा। अब 36,000 को लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रियेश कैपिटल एंड मृत्युंजय कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:2 में। 36,000 रुपये को 3:2 में कैलकुलेट करेंगे तो 21,600, 14,400 रुपये आएगा। अभी पिछले जनरल एंट्री में भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ स्टूडेंट। आई होप कि रिवोल्यूशन अकाउंट इज क्लियर कि लेफ्ट हैंड साइड लॉस होता है डेबिट और राइट हैंड साइड प्रॉफिट है क्रेडिट, ओके। सो अब हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। सो कैपिटल अकाउंट, एज यू नो, सो देखो देयर आर 3 पार्टनर्स। पहले तो पर्टिकुलर्स प्रियेश मृत्युंजय उत्कर्ष, पर्टिकुलर्स प्रियेश मृत्युंजय उत्कर्ष। सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, आपने फिंगर स्टिक में लिखा है ना कैपिटल अकाउंट के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस देखो, आप लायबिलिटी में दिया होगा, स्क्रीनशॉट में देख लो क्वेश्चन के, बैलेंस शीट में दिया है प्रियेश का कैपिटल 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, और मृत्युंजय का 1,20,000। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,50,000 एंड 1,20,000, क्योंकि लायबिलिटी है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। WCR भी लायबिलिटी में दिया था 30,000 रुपये का, लेकिन आप जनरल एंट्री क्या किए, 10,000 से क्लेम था तो बचा कितना, 20,000। तो आप देखो लिखा होगा आपने टू प्रियस कैपिटल टू मृत्युंजय लिखा होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई WCR 12,000 और 8,000। IFR भी आपने 15,000 में बांटा है क्योंकि 5,000 का लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट पे। सो बाई IFR 9,000 और 6,000 ओल्ड रेशियो में। आप जनरल एंट्री से चेक कर सकते हैं अमाउंट, या डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल रिजर्व आपका 20 का 20 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 12,000 एंड 8,000। देखो ये तो हो गया अभी एक साइड का, लाइबिलिटी साइड का WCR और ये सारी चीज़ें। अब एसेट साइड भी होता है फिक्स एसेट्स लाइक ओल्ड गुडविल। सो देखो ओल्ड गुडविल है 1 लाख, सॉरी 20,000 रुपये का टोटल गुडविल है ओल्ड,
उसको हम प्रियेश और मृत्युंजय में राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो 20,000 को 3:2 में बांटो, 12,000 और 8,000 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है क्वेश्चन में 10,000 का, तो उसको भी प्रियेश और मृत्युंजय में ओल्ड रेशियो 3:2 में शेयर कर दो, 6,000 4,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है एसेट्स में 5,000 रुपये का, तो उसको भी राइट अप कर दो प्रियेश और मृत्युंजय में 3:2 तो 3,000 2,000। तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप था ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व जो भी था। अब आते हैं रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों ने अभी भी बनाया है और देखा है कि प्रियेश को प्रॉफिट में शेयर मिला 21,600, मृत्युंजय को मिला 14,400। तो हम प्रॉफिट चूंकि हो रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं बाई रीवैल्यूएशन। अगर ये लॉस आया होता है रिवैल्यूएशन पे तो डेबिट में लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन, बट चूंकि यहाँ प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नया पार्टनर जो उत्कर्ष है, वो 40,000 रुपये गुडविल का लेकर आया है, चूंकि हम लोग जनरल किए हैं अभी। तो वो किसको बटेगा, प्रियेश और मृत्युंजय को इक्वली, क्योंकि दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 20,000, ठीक है। फॉर्मेट याद रख लो कैसे लिखना है, सब बताया हुआ है, क्रॉस करके भी बता दिया है। अब इसके बाद उत्कर्ष अपने हिस्से का कैपिटल ला रहा है, तो बाई बैंक अकाउंट 1,50,000, राइट। सो अब हम टोटल कर ले रहे हैं 1,50,000, 1,76,400, 2,24,600। चूंकि क्रेडिट ही ज़्यादा होगा, देखने से पता चल रहा है, यही पैसा हम यहाँ भी लिखेंगे टोटल। अब इसमें से करेंगे क्या, बैलेंसिंग पता करेंगे टू बैलेंस CD। तो उत्कर्ष का तो एज इट इज़ आ जाएगा, चूंकि वो तो नया पार्टनर है, तो जो लाया वही पैसा 1,50,000 रहेगा बैलेंस। बट अब मृत्युंजय का 176,400 था टोटल, उसमें से 8 + 4 + 2 यानी कि 14,000 माइनस करेंगे तो आएगा 162,400। अब इसका प्रियेश का 2,24,600 है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 12 6 और 3 ये माइनस करेंगे तो आएगा 2,03,600। नाउ आई थिंक आई होप यू स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू बैलेंस, because since class 11 you are doing a study to find the balance in the ledger account, okay. So take the screenshot of this. Now I am moving for the balance sheet. Done, okay. So balance sheet after admission of new partner, that is Utkarsh. So देखो बेटा, अब सभी लोग बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ गई है, पहले 1,80,000 थी, अब उसकी वैल्यू 2,00,000 रुपये हो गई है, तो बढ़ाकर दिखा दिया हमने 2,00,000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू पहले 40,000 थी, बट इट वाज अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो 10,000 से बढ़ाता है तो बढ़ाकर दिखा दिया 50,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू पहले 80,000 थी, अब घट गया 75,000, तो 75,000 दिखाया। डेटर्स 20,000 था, लेकिन पहले प्रोविजन 800 था, बट 5% के हिसाब से 1,000 मेंटेन करना है, तो 1,000 रुपये घटाया, क्योंकि 200 रुपये क्रिएट किया है ना हमने, तो 19,000 आ गया। स्टॉक, स्टॉक में जो चेंज हुआ है आप देख लो, अगर हुआ है तो चेंज करके लिखा है 50,000। प्रीपेड सैलरी पहले से नहीं था, अब दिखाएंगे 2,000। अब रही बात कैश एट बैंक की, तो कैश पहले से हमारे पास 40,000 का था पुराने बैलेंस शीट में, और नया पार्टनर 1,50,000 कैपिटल और 40,000 गुडविल, यानी टोटल 1,90,000 ला रहा है, तो कुल हमारे पास कैपिटल हो गया 2,30,000, राइट। क्रेडिटर्स पहले 35,000 का था और 5,000 रुपये अब क्लेम नहीं किया जाना है, तो घटा दिया हमने 30,000। प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,200 था, बट उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया था, ठीक है। कैपिटल प्रियेश, मृत्युंजय और उत्कर्ष का, प्रियेश का जो बैलेंस अभी कैपिटल अकाउंट बनाया, जो जो बैलेंसिंग फिगर आया वही लिख देंगे, टोटल ये लिख दिया। WCR पहले से तुम्हारे पास 30,000 रुपये का था, लेकिन क्लेम सिर्फ 10,000 के लिए है, तो सिर्फ 10,000 दिखाएंगे, ठीक है। चूंकि IFR तो पूरा खत्म हो गया, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। अब टोटल हम लोग करेंगे तो 6,26,000 आ रहा है। So students, I hope you have understood the class, and but you can better understood by doing the practice, self practice. The same question you should do practice at home, and take the screenshot of this so that you can revise it. Okay students, just take the SS. I hope you have taken. Okay. So okay, our class is almost over today. Okay students, so bye bye. If you want to any query, you want to ask any query, you can.